Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. This afternoon, we have Mr. Mozam Arslan Bharti to guide and mentor all of us. Mozam Arslan Bharti is a seasoned entrepreneur. He's an edtech expert, public speaker, political policy analyst, curriculum advisor, mentor, and advocate of clean and green planet. He's the founder and CEO of Alphos and Technology. It's a technology and consulting organization. He's the chairman of Greener Planet, CSR initiative of Alphos, aiming to highlight and promote green initiatives. He has an 18-year experience in IT and telecom sector, spanning the development and strategy, operations, marketing, sales, and executive management. Mr. Mozam is actively supporting and mentoring youngsters to pursue their entrepreneurial dreams. He is a member of advisory board of Jumpstart Pakistan, which is a platform to promote entrepreneurship in Pakistan. He is also a member of Industry Advisory Board, Software Engineering at NUST, plus a Corporate Advisory Council, NUST, Board of Studies, University of AJK, Board of Studies, Federal Urdu University, and IT Policy Group, Islamabad, Chamber of Commerce and Industry. Sir, we are very honored to have you on the board, and we are looking forward to have some really good discussion with you. Thank you so much for the kind introduction जो है मेरा नाम मौजम असलान भट्टी है जी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन उन्होंने शेयर करवा दिया अच्छा हम ये करेंगे कि एक क्विक इंट्रोडक्शन जो है ना वो जितनी टीम्स हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एक बंदा उनकी तरफ से प्लीज अपना नाम बताइएगा और अपना कोर्स कि किस इंजीनियरिंग या बीबीए जिससे भी आप जो है ना वो आप बिलोंग करते हैं और उसके बाद जो है ना जिस आइडिया पे आप काम कर रहे हैं वो आपने जो है ना वो शेयर करना है मैम खजाना ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है वेलकम टू द सेशन मैम अच्छा ठीक है क्विकली आपने अपना नाम अपने टीम मेंबर जो है सब उनका नाम अपना डिसिप्लिन और अपने आइडिया की बहुत 2 या 3 लाइनें से बतानी है आपने ठीक है सो व्हाट वी विल डू इज वी विल हैव a quick introduction of all the participants मैं रिक्वेस्ट करूंगा मॉडरेटर से वो किसी एक तरतीब से सबसे जना वो रिक्वेस्ट कर ले उनके माइक अनम्यूट करवा के और फिर वो जना ज्वाइन करवा लें उसके बाद हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट में व्हाट वी विल डू इज कि हम एक जो है ना आपने जो स्लाइड डेक बनाया है किसी एक प्रोजेक्ट को रेफरेंस के तौर पे ले लेंगे और स्लाइड डेक को हम क्या करेंगे जो आप लोगों ने बनाना है ना उसको डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मॉडरेटर से प्लीज आप टीम का जरा उनको बता दें एक नाम ले लें वो खुद अनम्यूट कर लेंगे और बता देंगे अपना इंट्रोडक्शन Ali Mazhar की जगह मैं कर रहा हूँ हसन my name is Mukhtar Ahmed sir and I'm from Air Legends team and basically my team members are Ali bin Mazhar and Saadabi basically sir we are working on an idea that is related to poultry farms we are going to increase the growth rate as in urban households or sir this is a basically IoT based battery cage system that we are working on. Excellent, thank you Mukhtar ji next please. Yeah, sure. Assalamualaikum everyone. My name is Talha Nadeem. I'm from electrical department from Air University. My members are Sadaf Anwar and Momna Tahir. So basically my idea is related to food. I'm going to present my food item basically on a cart system as all of you see that different type of malls के अंदर carts वगैरह होती हैं उसके जैसे कि basically हमारा हर्ट प्राइस का जो टैगलाइन है वो ये कि fresh food for everyone and nutritious food तो basically हम जो है वो potato lollipops जो हैं उसके different flavors जो हैं flavors को हम lollipops के अंदर convert करके स्टिक्स के ऊपर सर्व करेंगे इन कार्ट एंड बेसिकली जो हमारी एक एडिशन है उसके अंदर वो ये है कि जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं न्यूट्रिशियस फ्रूट्स बेसिकली वो लोग इतना खाते नहीं हैं तो हम उसको जो है स्टिक्स के ऊपर लॉलीपॉप्स की सूरत में जो है हम उसको प्रेजेंट करेंगे और वेजिटेबल्स भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पोटैटो लॉलीपॉप्स के फ्लेवर्स हैं उसके अंदर चिकन जी नेक्स्ट टीम प्लीज
No worries. I think I will go on. My name is Sabahat Khan. I'm from the team SASCOM. Our team includes me, Umar Jawad, Muhammad Jawad, and Aisha Siddiqui. I'm from biomedical engineering in Air University, and our project basically concerns preservation and utilization of the wild fruits of Pakistan, which are kind of wasted every year, not fully utilized. So our company, whose name is Forganica, intends to make use of those wild fruits and make refining facilities to refine them into a final product, which we will then sell into the market. Thank you. Thank you, Sabahat. Interesting idea. Next, please. Yes. मेरी टीम का नाम है फूड reinforcers. हमारा जो बेसिकली टॉपिक है दो चीजों को कवर करेगा, एक ह्यूमन एक्सेसिबिलिटी को और न्यूट्रिशन को. हमारा बेसिकली प्लान ये है जो बेसिक फूड कंपोनेंट्स होते हैं लाइक पोटैटो एंड बटर, जो खा के इंसान सर्वाइव कर सके थ्रू आउट हिज लाइफ, उसको इन दोनों चीजों को मिला के एक ऐसी डिश बनाई जो कि होती है मैश पोटैटोस, और उन्हें ऐसी सच पैकेजिंग के अंदर रखें जो एक्सेसिबल होए, यूटिलाइज की जा सके हर ह्यूमन, हर जो भी अफोर्ड कर पाएगा, जो भी खरीद पाएगा इस चीज को. जी ठीक है. सो हमारा ये मेन प्लान है, दो चीजों को टारगेट करना. पीने का आइडिया यार, सारे खाने पीने के आइडियाज हैं. नेक्स्ट प्लीज. यस सर. हमारे पास हमजा जावेद है, उमर अहमद है, उमर जवाद है, या वो एक ही टीम से हैं. अभी हमने ज्वाइन किया है इरफा रुबाब, तारिक जब्बार, जाजिब अली. सर दे आर पार्ट ऑफ माय टीम. ऑलराइट, थैंक यू. अच्छा चले ठीक है, दरमियान में गूगल आ जाता है तो फिर उनको भी करवा लेंगे. थैंक यू सो मच तलहा, मुख्तार, सबाहत, मोहम्मद, हमाद, हमजा, जितने भी लोग जिन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया है. अच्छा, आप सब लोगों के जो टॉपिक है, क्योंकि जाहिर है वो उस चैलेंज के अंदर ही फॉल कर रहा है फूड के हवाले से. सबसे पहले जो है ना, जब आप जजिंग के लिए जो है ना वो जाएंगे आप जो है, ठीक है, मतलब आपका जो स्टार्टअप जो भी आइडिया है आपका, ठीक है, उसमें आपने जाना है. सबसे पहले जो चीज हमने करनी होती है वो होती है कि आइडिया की वैलिडेशन. ठीक है, आइडिया के वैलिडेशन का मतलब है जो चीज हम सोच रहे हैं क्या इसकी जरूरत भी है. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 कि इससे पहले अगर ये प्रॉब्लम मौजूद है तो क्या कोई और बंदा भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. नंबर 3 कि इस प्रॉब्लम की जो है ना वो क्या है, इसकी ग्रेविटी क्या है, इसकी कितना ज्यादा क्रिटिकल है ये चीज जो है. तो आइडिया वैलिडेशन के हवाले से जो बात करते हैं, आपने अपनी जो पहली स्लाइड जो आपने बनानी है, जो आप करेंगे, वो होगी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की. ठीक है, कि आपने जो मुझे अभी बताया है ना, पहली स्लाइड आपकी जो बनेगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की होगी. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट देंगे कि किस तरह का चैलेंज दरपेश है जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं. मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त ने कहा, शायद तलहा ने कहा था, कि बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्रूट्स जो हैं वो आमतौर पे नहीं खाते या वेजिटेबल्स प्रॉपरली नहीं खाते और इनकी न्यूट्रिशंस की नीड जो पूरी नहीं हो रही होती. ठीक है, इसके साथ अगर आप एक और फैक्ट ऐड कर दें कि इतने % लोग फलां सर्वे के मुताबिक उनकी न्यूट्रिशन नीड्स पूरी नहीं है और उनकी बॉडी जो है ना वो डेफिशिएंट है विटामिन में, ये चीज के ऊपर 3 से 4 लाइनें आपने बता देनी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर. ठीक है, इससे ये हो जाएगा जो जजेस हैं वो उनके लिए कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा कि आपकी टीम किस प्रॉब्लम को, किस चैलेंज को जो है वो सॉल्व करने जा रही है. क्योंकि फूड का तो बहुत बड़ा टॉपिक है. ठीक है, पोल्ट्री वालों ने बात की, पोल्ट्री वालों के आइडिया के मुताबिक
कि हम जो है मिसाल के तौर पे पोल्ट्री की जो प्रोसेस है उनका ग्रोथ का उसको तेज करेंगे। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरीके से बन सकती है कि करंटली पोल्ट्री की जो प्रोडक्ट है इट टेक्स 3 months टू रीच लेट्स से 2 kg वेट, और उसके लिए इतनी फूड जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आप कर दें कि इसकी वजह से जो उनकी प्राइसिंग है वो फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे देखें, एक जो पोल्ट्री का आपका जो चिक वो है उसको अगर आप 1 महीने की बजाय 2 महीने उसकी हिफाजत करनी पड़ जाए, केयर करनी पड़ जाए, तो आपका खर्च जो है ना वो डबल हो जाएगा। इस चीज का हो सकता है इससे भी ज्यादा जो है हो जाए। तो आप कहेंगे जी कि इससे क्या हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोसेस बाय 30%, 35%। ठीक है, तो आपने की सबसे पहली जो स्टेटमेंट जो होगी, आपकी जो स्लाइड बनेगी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की होगी, चैलेंज की होगी, जो कि इस वक्त मार्केट, इंडस्ट्री, सोसाइटी, बिजनेस जो है वो फेस कर रहा है, जिसको आप सॉल्व करने के जा रहे हैं। ठीक है, आप सब लोगों के अच्छे आइडियाज हैं, फूड से रिलेटेड है। तो पहला ये प्लीज अपने साथ नोट्स लेते रहिएगा। अपनी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की चीज आ जाएगी, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में प्लीज फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने नेट से ढूंढने हैं, नेट से ढूंढ के लिखने हैं। आप सर्वे का जिक्र करते हैं तो सर्वे की सोर्स बताएं कि कहां से कर रहे हैं, परसेंटेज की फॉर्म में चीजें बताएं कि इतने परसेंट आबादी, इतने परसेंट पॉपुलेशन, इतने परसेंट लोग, या आप बता दें एग्जैक्ट नंबर है तो नंबर भी बेशक निकाल के ले, लेकिन नंबर जो है ना वो इससे क्या हो जाएगा कि आपके उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या मिलेगी, तकलीफ मिलेगी, उसको सपोर्ट मिलेगी, एंडोर्समेंट होगी उसकी। ठीक है, ये हमने भी जिक्र किया किस चीज का, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। अभी मैंने शुरू में एक आपसे बात की थी आइडिया वैलिडेशन का। अच्छा, अब ये चीज है कि प्रॉब्लम तो हमें पता चल गया कि हम किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व करने का कोई एक ही प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए मेरे पास जो है ना वो गिलास है। अब एक गिलास है, इसमें क्या है, पानी है। पानी पीने के लिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एक ही हो सकता है कि वैसे करके गिलास से इस तरह करके पी लो। ठीक है, एक तरीका, मैंने पानी पीना है ना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये पानी पीना है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं कोई इस ग्लास में स्ट्रॉ डाल के स्ट्रॉ से पी लूं। तीसरा ये हो सकता है कि मैं कहता हूं कि नहीं, मैं इस ग्लास से एक छोटे से कप में डालूंगा, उससे पीऊंगा। ठीक है, तो एक काम को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है उसके बाद आपने जो आइडिया प्रपोज करना है उसका लिखना है कि सेकंड स्लाइड बनेगी कि सोल्यूशन जो है ना, हम हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस चैलेंज। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, अब आगे हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस चैलेंज। यहाँ पे आप अपनी जो आप लोगों ने मुझे बताई है ना बात जो है, ये आपने लिखनी है कि माय टीम इज गोइंग टू एड्रेस दिस चैलेंज बाय के बाद आपने बुलेट पॉइंट में लिखना है कि वी विल इंट्रोड्यूस न्यू फीड फॉर ग्रोथ ऑफ पोल्ट्री। या आपने वो जो उन्होंने बात की, आई थिंक सबात ने जिक्र किया था कि आप जो भी आप करने जा रहे हैं कि नई तरीके से जो है ना वो अगर बनाने जा रहे हैं, उसके प्रोसेस को रिफाइन करने जा रहे हैं या उसको यूज करने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस चैलेंज बाय, कैसे कि वी विल इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्मूला ऑफ फूड इन द मार्केट दैट विल इंक्रीज। अब यहाँ पे जो चीज आएगी कि आपने अपने सोल्यूशन की, अपने आइडिया की जो वो है आउटपुट होगी वो लिखनी है। आउटपुट क्या क्या हो सकती है? जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन में मल्टीपल चीजें आती हैं। आप में से मुझे को बता सकता है कि इनोवेशन की क्या क्या एग्जांपल हो सकती है? यानी आप कहते हैं मैंने इनोवेट किया है, तो इनोवेट करने से क्या क्या तब्दीली आ सकती है? एनीवन वुड लाइक? सर, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, इसके अलावा कोई और जो है? कॉस्ट एफिशिएंट, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। एब्सोल्युटली जी, अनस आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुख्तार आपने भी बिल्कुल ठीक कहा था, अनस आपने भी कहा कि कॉस्ट एफिशिएंसी हो सकती है, सुबात आपने भी बिल्कुल सही कहा कि बेटर लिविंग हो सकती है। मुझे कोई और बताएगा, अगर मैं टाइम कम कर दूं किसी चीज का, मिसाल के तौर पे देखो अभी हमें इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए 4 घंटे लगते हैं, अगर मैं कोई ऐसी चीज बना दूं 2 घंटे लगे, तो क्या ये इनोवेशन नहीं होगी? होगी सर। जी ठीक है, इसलिए हम कॉस्ट कम कर दे, टाइम कर दे,
अच्छा क्वालिटी बढ़ा दें, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मैं यूज कर रहा हूँ पानी जो है ना, नेस्ले का पानी यूज कर रहा हूँ, इसलिए यूज कर रहा हूँ नेस्ले का पानी कि मुझे पता है कि ये साफ मुझे करते हैं। जो टैप वाटर आता है ना, मुझे पता है वो साफ नहीं है। अगर मैं कोई छोटा सा फिल्टर बना दूं जो लो कास्ट फिल्टर हो, सिर्फ ₹1 में 2 में 4 में क्या करे, मेरा पूरी वो उसको पानी गुजरने को साफ कर दे, तो दैट विल बी इनोवेशन एज वेल, ठीक है। तो आपने बताना ये है कि मेरे इस सोल्यूशन से जो मैं जो काम करूंगा, इससे क्या इंप्रूवमेंट आएगी, इससे क्या हो जाएगी, ग्रोथ बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। ये वाली बीमारी जो है ना, उसको हेल्प करने में, सॉल्व करने में, इसलिए कि वेस्ट को हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, फूड को बेटर प्रिजर्व कर सकते हैं। जो जो आपके बुलेट पॉइंट बनेंगे, 3 से 4 अपने बुलेट पॉइंट बताने हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, फिर आपका सोल्यूशन जो आप करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं आइडिया वैलिडेशन की। आइडिया वैलिडेशन की के हवाले से चीज है कि आप लोग नेट पे रिसर्च करेंगे कि जो आप काम करना चाह रहे हैं इसके बारे में क्या कोई रिसर्च मौजूद है। अगर रिसर्च मौजूद है तो उस रिसर्च को कोड कर दें। अगर किसी और जगह हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसी तरह की चीज मैक्सिको में हो रही है, चाइना में हो रही है और इट इज सक्सेसफुल, ठीक है। वो किस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे अभी भी हो सकता है, अभी कह सकते हैं कि चाइना में इस तरीके से हो रही है, इससे इतने % फायदा होता है, लेकिन हम जो मेथड लेके आ रहे हैं, हम थोड़ा सा हमने चेंज किया है, इससे जो है ना वो हमें रिजल्ट बेहतर मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी तरफ से क्या हो जाएगी, कॉपी नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, अगर आप कॉपी भी करते तो स्टिल इट्स ओके। पाकिस्तान में तो नहीं हो रही ना अभी का वो चीज। तो आपने एक चीज करनी है कि रेफरेंस देना है कि जो चीज आपने प्रपोज की है उसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी मौजूद है, रिसर्च के रेफरेंस से या किसी जगह पे बना हुआ है तो उसके रेफरेंस से। इससे तीसरी स्लाइड से आइडिया वैलिडेशन का जब आप लेके आएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, जजेस जो है ना इस बात को एंडोर्स करेंगे कि हाँ जी, यू अंडरस्टैंड द डोमेन जिसमें आप काम करना चाह रहे हो और आपने प्रॉपर रिसर्च की है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपने क्या किया है, उसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। अभी तक हमारी कितनी स्लाइड्स हुई है, 3 स्लाइड हुई है। पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, दूसरी नंबर 2 आप जो सॉल्यूशन प्रपोज करें, नंबर 3 आइडिया वैलिडेशन की कि ये चीज जो है ना प्रैक्टिकल है, हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 स्लाइड की तरफ। जो है नंबर 4 स्लाइड की तरफ आते हैं कि हमने एक प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम बात ये करेंगे कि जी एक प्रॉब्लम जो है जो सॉल्व कर रहे हैं उसका एंड यूजर कौन है, ठीक है। अच्छा, मैं तलहा से पूछूंगा, तलहा जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, आपकी जो एंड प्रोडक्ट होगी उसको यूज कौन करेगा? जी तलहा। तलहा जी, तलहा आपने अनम्यूट करें प्लीज, अब बताइए कि आपकी प्रोडक्ट का एंड यूजर कौन कौन है? आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज नहीं में आ रही। मुख्तार आप बताएंगे आपकी प्रोडक्ट का एंड यूजर कौन कौन है? सर हमारी प्रोडक्ट का जो एंड यूजर्स हैं वो अर्बन हाउस होल्ड्स हैं पाकिस्तान। ओके जी, मेनली हम उनको सर इसके अलावा मतलब एज एन अर्बन हाउस होल्ड्स के अलावा मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी जी सर। सॉरी, मैंने ये भी कुछ देर पहले मूंगफली खाई तो मैं बहुत ऊंचा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वजह से कंफ्यूजन होगी। अच्छा मुख्तार, आपने बताया कि अर्बन हाउस होल्ड्स हैं, इसके अलावा कोई और यूजर की टाइप? इसके अलावा सर लोकल फार्मर्स। ठीक है, देखो आपने ना क्या किया कि 2 टाइप आपने निकाल ली, एक है हाउस होल्ड अर्बन यूजर्स जो है, दूसरा क्या की फार्मर्स की आपने निकाल ली, ठीक है। तो हम अब 4th स्लाइड है ना वो हमारी बनेगी, वो होगी मार्केट सेगमेंटेशन। इसका आप जो है ना वो टाइटल देंगे कि मेरे यूजर किस किस क्लास के होंगे, किस किस टाइप के होंगे। मिसाल के तौर पे देखें,
सबाहत आप मुझे हेल्प कीजिएगा कि हमारे पास स्टूडेंट जो है ना, मैं अगर आपसे कहूँ कि स्टूडेंट की टाइप बताएं तो स्टूडेंट की टाइप्स किस किस तरह की हो सकती हैं? Sir, are we dividing them based on financial situations or? ओके अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे लेवल के हिसाब से डिवाइड कर दें, फिर कितनी क्लासेस बनेगी? सर एक तो लो इनकम फैमिलीज होंगी, बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे लो इनकम, फिर उसके बाद मिडिल क्लास आ जाती है, फिर अपर मिडिल क्लास आ जाती है, उसके बाद फिर एलीट क्लास आ जाती है। जी ठीक है। अच्छा, ये एक पर्सपेक्टिव है फाइनेंशियल के हवाले से। अगर मैं ईयर्स ऑफ एजुकेशन के हवाले से करूं तो फिर क्या क्लास हो सकती है हमारे पास? सर अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से और फिर एजुकेटेड बैकग्राउंड से 2 ही होगी। परफेक्टली। दूसरा पर्सपेक्टिव हो गया। तीसरा पर्सपेक्टिव हमारे पास ये हो सकता है कि प्ले ग्रुप के स्टूडेंट्स, प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स, सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स। ओके सर। तो इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। कि हमने क्या करना होता है, आपने ये लफ्ज जो है ना उसको सर्च भी करना है, इसके बारे में पढ़ना भी है, मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, कि हम अपने यूजर्स को डिवाइड करते हैं कि किस किस टाइप को बिलोंग करते हैं। क्यों? देखें, जो आपने जिक्र किया स्टूडेंट की बात की, जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स में हो सकता है कुछ फर्क हो, अर्बन एरियाज में इंटरनेट अवेलेबल है, उनकी नीड्स फर्क हो सकती है उससे। जो प्राइमरी क्लास का जो स्टूडेंट है वो बच्चे हैं, उनकी नीड्स और तरह की हैं। जो आपके यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आपकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट और तरह की है। ठीक है, आपके लिए कैंपस भी और तरह का चाहिए, आपके लिए बुक्स भी और तरह की चाहिए, सिलेबस भी और तरह चाहिए, आपका मैथ्स, खाने का हॉस्टल, सब कुछ फर्क होता है। तो हम अपने जो है ना, आप लोगों ने अपना बताना है स्लाइड में कि मेरे यूजर सेगमेंट कौन कौन से हैं। सेगमेंट का मतलब होता है किस टाइप के हैं वो। तो मार्केट सेगमेंटेशन को आपने सर्च करना है और फोर्थ स्लाइड आपने बनानी है मार्केट सेगमेंटेशन की, कि मेरे मार्केट में जो मेरे एंड यूजर होंगे, मेरी प्रोडक्ट के, मेरे सोल्यूशन के, वो कौन कौन होंगे। फिफ्थ स्लाइड जो है ना, अब वो आती है कि मैं जो चैलेंज सॉल्व करने जा रहा हूं उसके लिए टारगेट ऑडियंस जो है कितने हैं। मिसाल के तौर पर आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में बस की आबादी कितनी है, कोई मुझे बता सकता है? Anyone, any wild guess? सर जब आखिरी दफा स्कूल में पढ़ा था तो 22 करोड़ थे, अब तो काफी ज्यादा होंगे। जबरदस्त। अच्छा, 22 करोड़ में अगर मैं कहूं कि मैंने एक नया मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस करवाना है और उसको सेल करना है, तो क्या मैं 22 करोड़ यहाँ बेच सकता हूँ? नहीं सर। क्या वजह है उसकी, बताइए। सर कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, कुछ लोगों को नीड नहीं होगी। ठीक है, और कुछ लोग अभी बच्चे होंगे, छोटे भी तो होंगे ना। यस सर। अच्छा, अब देखें तलहा और मुख्तार, अब देखें पाकिस्तान की आबादी तो 22 करोड़ है, लेकिन इसका मतलब है हमारी मार्केट साइज 22 करोड़ नहीं है। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास हम कहते हैं कि जो लोग खरीद सकते हैं वो तकरीबन तादाद है 2 करोड़ लोगों की। तो मैं कहूंगा मेरी मार्केट का साइज है 2 करोड़ लोग। अब आप कहेंगे कि मैं टारगेट कितना कर रहा हूं, आप कहेंगे मैं 10% इसका टारगेट कर रहा हूं। 2 करोड़ का 10% कितना होगा बताएं? 20 लाख। 20 लाख। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच। 2 करोड़ का जो 10% होगा, तो आप कहेंगे ये मार्केट साइज की स्लाइड बनेगी 5वीं मार्केट साइज। उसके अंदर लिखेंगे मार्केट साइज कितना है, वो है जितना भी आपके वो तादाद है ना, देखेंगे आप उसको नंबर में भी लिख सकते हैं, आप उसको अमाउंट में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री $60 बिलियन की है और मैं इसमें टारगेट कर रहा हूँ 10%। ठीक है, ये 50 बिलियन की तो मैं 10 करता हूँ, तो इसका मतलब मैं 5 बिलियन को टारगेट कर रहा हूँ। तो आप जो है ना अपना लिखना है कि साइज कितना और मैं कितने को टारगेट कर रहा हूँ। तो आप नंबर यूज कर सकते हैं या आप पैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इससे कोई मुझे बता सकते हैं आपने किसी ने काम किया कि उसकी मार्केट साइज कितनी है? एनीवन, किसी ने काम किया से? यस सर। जी प्लीज आइए मुख्तार आप।
सर हमने एज इन 40 ऑलमोस्ट 4 करोड़ के सर अर्बन हाउस होल्ड्स की फिगर आ रही थी जो हमने एज इन रिसर्च में देखी थी सर। तो उसमें से अगर हमने अपनी ये स्लाइड में ये चीज ऐड भी की थी कि अगर हम मतलब ऑलमोस्ट उसमें से सिर्फ 4 लाख कस्टमर्स को भी हम टारगेट कर लें विद इन अर्बन, तो हमें काफी बड़ी मार्केट मिल जाती है। जबरदस्त। थैंक यू मोहताज, आपने ऑलरेडी माशाल्लाह ये काम किया हुआ है। 5th स्लाइड हमारे पास आ जाएगी मार्केट के हवाले से, मार्केट साइज और मैं कितनी मार्केट को टारगेट कर रहा हूं। अच्छा, अब यहाँ पे आएगी चीज कि हाँ आप इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पे अब आपका आएगा एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है। एग्जीक्यूशन प्लान में अब आपकी अपनी जो चॉइस है कि आप एक स्लाइड में इसको शो कर सकते हैं, 2 में शो कर सकते हैं, 3 में शो कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा ना करें। एग्जीक्यूशन प्लान में आप ये बताएंगे कि ये काम हम करेंगे कैसे, ठीक है। आप इसे कोई वॉलंटरीली मुझे बताएगा कि अगर वो अपना एग्जीक्यूशन प्लान बताए कि वो कैसे ये काम करेगा। मिसाल के तौर पे देखिए इस तरह हो सकता है कि सर व्हाट वी विल डू इट के फर्स्ट हम एक प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद हम इसको फलां जगह के ऊपर पार्टनरशिप करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, अर्निंग कस्टमर के तौर पे लेंगे, एंडोर्समेंट लेके फिर हम चाइना से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, या हम क्या करेंगे, हम जर्मनी से ये चीज इंपोर्ट करेंगे, वहां से ये चीज करेंगे, खुद अपने यहाँ पे प्लांट लगाएंगे। प्लांट लगाने के बाद यहाँ पे हम यूनिट बनाएंगे और यूनिट बना के हम इस तरीके सेल करेंगे। ये आपका एग्जीक्यूशन प्लान है जो आप एक स्लाइड में, 2 स्लाइड में, 3 स्लाइड में आपकी मर्जी है, इससे ज्यादा नहीं मैं रेकमेंड करूंगा। ये आप शो करेंगे कि आप अपने सोल्यूशन को जो आपने प्रपोज किया है इम्प्लीमेंट कैसे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा कि एग्जैक्टली जजेस जो है ना दे वुड लाइक टू नो कि यार आप एक दावा तो कर रहे हैं, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो बात ये है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सवाल आएगा। तो इसमें आपने बताना ये है कि मैं किस तरीके से, किन टूल्स को यूज करके, किन प्रोसेसेस को यूज करके, किन पार्टनर्स को यूज करके मैं इसको वो करूंगा। तो हमारे पास कितनी स्लाइड्स होगी अभी, 6 स्लाइड्स होगी हैं एग्जीक्यूशन प्लान। 7वीं स्लाइड जो है ना, 7वीं की तरफ जाती है। 6 का मतलब है कि वो 7 8 भी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड मुझे कहना चाहिए वो आती है आपकी कि आपने क्या करके, एक चीज जो मैंने खुद एक्सरसाइज की है, प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने जो है ना 2-3 दिन में आपके पास तौर पे करना ये है कि जी हम किन किन इदारों से हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, या किन इदारों से हम क्या करेंगे, उनको अपना अर्ली कस्टमर बना लेंगे, उनको हम डिस्काउंटेड देंगे या फ्री दे देंगे ताकि वो हमारे पायलट कस्टमर बन जाए। उसका फायदा ये हो जाएगा, आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। तो आपने 2-4 ऐसे इदारे जो है ना वो आइडेंटिफाई करने हैं। इससे जजेस जो है ना उनको आइडिया होगा कि आपने होमवर्क किया हुआ है और आप अपनी डोमेन को समझते हैं और आपको पता है कि इंडस्ट्री में कौन कौन प्लेयर है। प्लेयर का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है एज ए पार्टनर, एज ए कस्टमर पोटेंशियल के तौर पे, जिसको आप जो है उसकी ब्रांड को, उसकी ब्रांड पावर को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी काम करना है कि अपने पोटेंशियल पार्टनर्स, अपने पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स को उसके अंदर लिखना है। उसके बाद अगली चीज आएगी टीम। टीम में आपने क्या करना है कि अपनी एक स्लाइड ऐड करनी है जिसमें अपने जो 3-4 मेंबर हैं उनका नाम लिखो, उनके नीचे सेट ऑफ एक्सपर्टीज लिखें कि मिसाल के तौर पर जो तलहा की जो टीम है उसमें तलहा का रोल होगा, तलहा विल बी सीईओ, तलहा विल बी रिस्पांसिबल फॉर पीआर, तलहा विल बी रिस्पांसिबल फॉर सेल्स। जो उनकी टीम में दूसरे मेंबर हैं वो ऑपरेशन को देखेंगे, तीसरे उनके जो मेंबर हैं वो मार्केटिंग साइड को जो है ना वो देख रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से साथ अपनी एक्सपर्टीज बताएं और बाद में हम क्या करेंगे कि हम इस तरह किसी और को भी हायर कर लेंगे। तो ये टीम फॉर्मेशन आपने जो है वो करनी है। कोशिश करें कि एक आध जो है ना वो स्टूडेंट है वो अपने बीबीए के डिपार्टमेंट से बिजनेस वाला ऐड कर लिया। अगर आप सारे लोग इंजीनियरिंग के हैं, अगर बिजनेस वाले कोई इंजीनियरिंग वाला काम करते चाहे तो से किसी को जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है गो टू मार्केट स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं, ठीक है। गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, मुझे आप इससे कोई हेल्प करेगा कि अगर मैं इस लफ्ज से हमें क्या समझ आता है गो टू मार्केट स्ट्रेटजी? सर मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या मतलब, उस प्रोडक्ट को कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है या कैसे उस चीज को आउट ग्रोथ की जा सकती है उसकी। जी सर, और मार्केट में उस प्रोडक्ट की वर्थ कितनी है? ओके, 2 कोई और ट्राई करना चाहेगा इसको?
सर हम लोग उसको किस तरह मार्केट करेंगे, व्हाट विल आवर सेलिंग पॉइंट बी? yeah. So Bharat, she is pretty close कि हम इस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करेंगे, मार्केट में लेके कैसे आएंगे, सेल कैसे करेंगे। अच्छा, किसी प्रोडक्ट को मार्केट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आप में से किसी ने K&N का नाम सुना है? किसका सर? K&N कभी आप लोगों ने K&N के कबाब खाए हैं आप सब लोगों ने? यस सर। अच्छा चलो, जबरदस्त हो गया। ठीक है, जब K&N वालों ने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि वो मुख्तलिफ जनरल स्टोर्स के पास गए और उनके फ्रीजर में क्या करके अपनी प्रोडक्ट्स रखवा दी और उनको उसके ऊपर कमीशन दे देते। ठीक है, ये एक तरीका कार है। जब K&N जो है वो ग्रो कर गया तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अपनी आउटलेट्स बना लिया। K&N के अपने स्टोर्स हैं जहां पे सिर्फ उनकी अपनी प्रोडक्ट्स होती है मीट की और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यस सर। अब पहले उन्होंने क्या किया, एग्जिस्टिंग जनरल स्टोर का सहारा लिए, जब वो बहुत एस्टैब्लिश होगी तो अपने स्टोर बना ले। तो आपने देखा ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को, सोल्यूशन को सेल कैसे करना है। क्या आपने खुद से कोई फिजिकल स्टोर बनाना है, कहीं दुकान बनानी है, ई कॉमर्स का कोई बनाना है, आपने फोन के ऊपर ऑर्डर लेना है। अच्छा, ये आप कहते हैं कि नहीं ये मैंने खुद सेल नहीं करनी। जो बड़े इदारे हैं ना, कुछ मिसाल के तो बड़े स्टोर्स हैं, मैं वहां जाकर रखवा दूंगा, वहां से लोग खरीदने आएंगे। फिर आप कहते हैं कि नहीं ये भी नहीं है, मैं एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, मेरी प्रोडक्ट जो है ना मैं किसी बड़े इदारे को बेच दूंगा, वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर इसको यूज कर लिया करेंगे, यानी एंड यूजर को मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जो आप यूज करते हैं गो टू मार्केट के लिए। सो द आइडिया इज दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि जो मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ, जो मैंने सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको मार्केट में कैसे सेल करूंगा। और वक्त के साथ साथ आपकी स्ट्रेटजी जो है ना वो बदल सकती है। जब आप मैच्योर होंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़े होने का मतलब ये है कि बिजनेस आप ग्रो कर जाएंगे, तो आपकी स्ट्रेटजी जो है ना वो चेंज हो जाएगी, इवॉल्व करेगी, रिवाइज हो जाएगी। तो शुरू में वो मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी जो 2-4 साल बाद जो आनी है उससे जो है वो फर्क हो सकती है। अच्छा, उसकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। अच्छा, उसके बाद हम जिक्र करते हैं कॉस्टिंग और प्राइस। आप इसमें मुझे कोई फर्क बता सकते हैं, कॉस्टिंग क्या चीज होती है और प्राइसिंग क्या चीज होती है? सर कॉस्टिंग होती है कि कितने में आप चीज खरीद रहे हैं, और प्राइस होती है कि आप मार्केट में से कितने की बेच रहे हैं। अच्छा उमैर, थैंक यू सो मच। आपने थोड़ा सा इसको ना वो कर दी, उलट कर दी है। कॉस्टिंग ये चीज होती है कि आपकी चीज कितने की रही है, और प्राइसिंग होती है कि आप सेल कितने की कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उमैर, चलो हमें मजीद अब हल करें कि कॉस्ट डिटरमिन करनी हो तो हम कॉस्ट कैसे डिटरमिन करते हैं? सर हम पहले उसका देखते हैं कि ये चीज बनेगी कितने की, फिर उसको हम बॉक्सिंग किस तरह करेंगे, उसकी पैकिंग वगैरह किस तरह करेंगे, फिर उसके बाद हम उस चीज को ले जाने और आने ले जाने में कितनी उसकी कॉस्ट होगी, और उस चीज को स्टोर करने के लिए कितनी कॉस्ट होगी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच उमैर, आपने बिल्कुल सही बताया कि हमें कॉस्ट में जितने आपके एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, कि उसका रॉ मटेरियल लाने में जो लेके आना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल के पैसे, उसके ऊपर को प्रोसेस करना है, प्लांट में चलाना है, उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी, बिजली की कॉस्ट आएगी, पैकिंग की कॉस्ट आएगी, स्टोरेज की कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, जो बंदे रखे हुए हैं सेल करने के लिए, मार्केट करने के लिए, उसकी कॉस्ट आएगी, कुछ इश्तहार देते हैं उसकी कॉस्ट आएगी। इन सबको जमा करके तो आप पर यूनिट जो है ना वो निकाल लेंगे कि एक पीस कितने का आएगा, एक बोरी कितने की आएगी, एक टन कितने का होगा, एक उसका मशीनरी का जो डिवाइस है यूनिट वो कितने का बनेगा, और उसके बाद अपना मार्जिन ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी कॉस्ट 100 रुपीज आती है, तो मैं कहता हूँ मैं 50% का मार्जिन रखना चाहता हूँ, तो आप 50% की बजाय कहते हैं 150 की सेल करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे अगर कोई बल्क में लेता तो फिर 150 की बजाय हम 140 की दे देंगे। ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं कि हमें कैश में आप पे करते हैं और बल्क में लेते हैं तो हम आपको मजीद 5% डिस्काउंट दे देंगे। तो आपने अपनी कॉस्टिंग करनी है, फिर आपने उसकी प्राइसिंग करनी है। प्राइसिंग करने के बाद आपकी आखिरी स्लाइड जो होगी वो होगी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में आपने ये करना ये है कि पहले साल में मेरा एक्सपेंस कितना होगा, मैं यूनिट कितने सेल करूंगा, यूनिट सेल करने के बाद जो है ना मेरा उसमें से क्या प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। इट इज परफेक्टली ओके। पहले साल में भी आप लॉस में चल रहे हैं, दूसरे साल में भी लॉस में चल रहे हैं, तीसरे साल में जाके आप ब्रेक इवन पे आते हैं, चौथे साल में जाके आपका प्रॉफिट होता है। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर बिजनेस के लिए, नए आइडिया के लिए। दिस इज जरूरी नहीं कि जबरदस्ती आपने प्रॉफिट शो करना है। ठीक है,
तो आपकी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो है ना वो बनी होगी, कम से कम 3 साल की बनाए, अगर 5 साल की बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कॉस्टिंग, प्राइसिंग, उसके बाद आपका एक्सपेंस के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद रेवेन्यू की प्रोजेक्शन, और इसमें आपने ग्राफ भी शो करें और फिगर भी शो करें, ठीक है। अब आखिरी स्लाइड जो है ना उसमें ये आप कर सकते हैं कि इस काम को करने के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड के साथ लिखे, मिसाल के तौर पर लिखते हैं कि मुझे 15 लाख रुपए अगर मिले तो मैं ये क्या कर सकता हूं कि इस काम को मैं शुरू कर सकता हूं। सवाल ये आएगा कि 15 लाख की क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ठीक है। हमजा, अगर आप हमारे साथ हैं तो मिसाल के तौर पे आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मैंने अगर 15 लाख रुपए ली है तो उसका क्या क्या यूसेज हो सकता है। Do we have Hamza with us? We have someone with us, learn with fun. I don't know आपका नाम क्या है? Could you please help us? सर बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब लेंगे नहीं, हम लोग अपना बिजनेस इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट भी हो और हमें खुद इन्वेस्ट भी ना करना पड़े। You are absolutely right. बात ये है कि अगर तो ऐसा सिनेरियो जिसमें आप बिल्कुल ना किसी से पैसे लें तो इससे आइडियल सिनेरियो तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी काम को शुरू करने के लिए कुछ 5-10 रुपए 100 रुपए कुछ तो कहीं से तो शुरू करना होगा ना हमें। यस सर। ठीक है, तो अब सवाल ये होगा, आप कहती हैं कि जो मैं आइडिया लेके आई हूँ इसको शुरू करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। अगला सवाल आएगा कि 1 लाख रुपए आपको क्यों चाहिए, तो आप उसमें बताएंगी कि इसमें से जो 1 लाख में 30,000 रुपए हैं वो ये फलां डिवाइस खरीदने के लिए इस्तेमाल होंगे। जो अगले 30,000 जो है ना वो हम क्या करेंगे, एक और जो है ना वो टेस्टिंग का प्रोसेस है वो हम फलां जगह से क्या उसके ऊपर लगेंगे, और 40,000 जो है ना वो हम लेबर को पे करेंगे। ठीक है, या आप कह सकते हैं जी कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, उसमें जो है ना हम 2-3 टीम मेंबर है, हमारी 20,000 रुपए हमारी पे जो है ना सैलरी है ना स्टाइपेंड वो भी शामिल है। तो आपने उसका ना पाई चार्ट बना के दिखाना है कि जो आप इन्वेस्टमेंट रेज करना चाह रहे हैं वो जाएगी कहाँ पे, HR में कितनी जाएगी, ऑपरेशन में, डिवाइस में, परचेज में, कहाँ पे जो है वो जाएगी। ठीक है, तो आप ओके सर। ठीक है, हमारे पास आप में से अगर कोई नोट्स ले रहा था तो who would like to volunteer कि वो क्या करे कि इसकी समरी बताए कि जो हमने स्लाइड्स जो है ना वो हमने कवर की है। सर मैं बताऊं? जी प्लीज उमर। सर सबसे पहले तो हमने आइडिया को हमने देखना है, आइडिया हमारा टारगेट आइडिया क्या है। ठीक है, तो सर एक बार हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया तो सर हमें बताना है। हाँ जी, तो स्लाइड आपकी सबसे पहले जो बनेगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बनेगी। तो ऐसे नंबर 1 वर्ड वैलिडेशन, नंबर 2 बनेगी सॉल्यूशन की जो आप प्रपोज कर रहे हैं। यस सर। नंबर 3 कौन सी बनेगी, आइडिया वैलिडेशन की, रेफरेंस बन जाएगा आपका। यस ठीक है, नंबर 4 बनेगी आपकी सेगमेंटेशन की बनेगी, मार्केट के आपके सेगमेंट्स कौन से हैं। नंबर 5 कौन सी बनेगी, मार्केट साइज की बनेगी। ठीक है, नंबर 6 आपकी बनेगी एग्जीक्यूशन प्लान, यानी कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी। ठीक है, यस सर। अच्छा, उसके बाद आपकी कौन सी आ रही है, आपकी कमिटमेंट आ जाती है सर उसके बाद कि आप मार्केट में अपने लोगों से कमिटमेंट कैसे करते हैं, लोगों को अपनी तरफ पार्टनर्स और कोलैबोरेटर्स की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी आएगी, टीम की आएगी। टीम की होगी कि टीम में आप किस तरह अपना टास्क डिवाइड करती है। उसके बाद कौन सी आएगी, 9th आएगी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आएगी आपकी। ठीक है, फिर आपकी आएगी कॉस्टिंग और प्रॉफिट उसकी प्राइसिंग की। ठीक है, और फिर आएगी फर्स्ट पहले साल में आपको कितना मुनाफा हो रहा है, दूसरे साल में कितना हो रहा है और तीसरे में कितना हो रहा है। और एक्सपेंस भी, सिर्फ प्रॉफिट नहीं एक्सपेंस भी करेंगे हम इसके अंदर, यानी कोई पैसे लगेंगे तो प्रॉफिट होगा ना, कुछ खर्च तो आएगा हमारा। यस सर। और आखिरी आएगी कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और उसका यूसेज क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब ये करते हैं कि आप में से कोई जिसने स्लाइड डेक बनाया हुआ है ना, ठीक है, हम उसको रेफरेंस के तौर पे ले लेते हैं। और हमारे पास जो 20 मिनट्स है, एक्चुअली मुझे और मीटिंग जो है ना थोड़ी उसकी एजेंसी जो है ना वो आई विल हैव टू लीव अराउंड 2 PM। हम ये करते हैं, हमारे पास 20 मिनट्स हैं,
हम आप में से किसी एक से क्या करते हैं, उसका स्लाइड डेक उनको होस्ट बना देते हैं और उनके स्लाइड डेक को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सबके लिए वो रेफरेंस केस बन जाएगा। आप में से जिसका स्लाइड डेक जो है ना वो समझता है कि वो रेडी है, तो प्लीज रेज योर हैंड या मुझे बताएं, तो वो जो होस्ट है ना उनसे कहते हैं कि वो आपको होस्ट बना देगा, फिर आप शेयर कर दीजिएगा। मुख्तार आपके पास स्लाइड डेक अवेलेबल है? सबाहत आपके पास है? सर मेरा रेडी नहीं है अभी। ओके, लर्न विद फन आपके पास? नो सर। उमर जवाद? सर आई एम विद सबाहत। अच्छा ठीक है। उमैर अहमद? तलहा? मुख्तार आपके पास? आई गेस आपने जिक्र किया कि आपके पास शायद हो। सर अभी अच्छा चले, कोई बात नहीं, एक आप काम करते हैं ना, ठीक है, आप ये करें यार, मुख्तार अहमद जो है ना, प्लीज आप इनको ना होस्ट बनाएं इनको प्लीज। या आई थिंक मैम फजैला आपका माइक म्यूट है, तो अनम्यूट कर लें प्लीज इसको। सर मैं असल में मोबाइल से लॉग इन हुआ हूँ, मुझे अच्छा चलो ठीक है, वो लैपटॉप में है। कहना चाह रही है आई गेस कि उनका या तो माइक म्यूट है, हमें उनकी आवाज नहीं आ रही। या नहीं मैम अभी भी नहीं, ऐसे लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रही है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरी। No, we can't hear you. Mazhar Sahab, Assalamu alaikum. I'm so sorry. I was there in another meeting. That was chaired by Vice Chancellor. That's still going on. लेकिन मैं साथ में दूसरे gadget पे उसमें in भी थी, लेकिन मैं I was very much there with you. Thank you so very much for sparing precious time or and value, adding so much value. तो अभी ये था कि मुझे सिर्फ इन बच्चों को मैं कह रही थी कि इनके पास एक प्रेजेंटेशन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के पास अभी नहीं है या होनी चाहिए थी, तो मैं टीम को कह रही थी, ऑर्गेनाइजिंग टीम स्टार्टअप क्लब, आप में से किसी के पास इनकी प्रेजेंटेशन है, किसी एक की कोई एक प्रेजेंटेशन, तो आप शेयर कर लीजिए प्लीज। I have रेफरेंस, let's not waste this learning opportunity. हमें मौजम साहब has been so kind enough to have joined us. तो एक रेफरेंस के तौर पे एक प्रेजेंटेशन अगर ऑर्गेनाइजिंग टीम के पास है तो वो शेयर कर लें। Ma'am, I have it, but it's partial ready. So can I share it? आज के सेशन के बाद तो सबको अपनी पार्शियल ही लगेंगी, लेकिन of course we have time.
experts. तो इसलिए बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, आप जिंदा ना हो। मैंने इसलिए कहा कि जिसका जिस स्टेज के ऊपर भी है, एक को हम रेफरेंस के तौर पे ले लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली उनके पास है, लेकिन दे आर मतलब कोई मसला नहीं। करिए, आप कोई लोग इस बात प्लीज शाई फील ना करें, हम सब लोग इस वक्त लर्निंग के फेज में हैं, टोटली अंडरस्टूड जो है ना, जिस भी स्टेज के ऊपर है आप इससे कोई भी वॉलंटियर कर सकता है, प्लीज शेयर करें, हम नए सिरे से बना भी लेंगे। चलिए, लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं वेस्ट होनी चाहिए इस मौके पे। चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट। I'm searching for the file. Just give me a few minutes. Few minutes will be too lot of time. Anyways, try meanwhile. Do it as soon as possible. Can you see it? जी बिल्कुल नजर आ रही है। एडिट मोड में इसको ओपन कर दें। अच्छा जी, इसको एडिट मोड में ओपन कर लें या अच्छा, इसको एडिट कौन कर रहा है? ये किसके पास है? ये मुझे बता सकते हैं ये किसके पास है? एडिट कौन कर रहा है इसको? मेरे सर मी अनस फरहानवान। अनस फरहान, अनस आपने एक काम करना है, जो पहले ही आपका सबसे ओपनिंग पेज स्लाइड होगी ना आपकी, दैट शुड बी अटेंशन ग्रैबिंग। वो इसमें ना हल्क प्राइस की बजाय आपने क्या करना है, अपने आइडिया से मुतालिक जो चीज है ना, कि पहली स्लाइड के ऊपर जो है ना, वो आपने ना थोड़ी देर वैसे नजर आ रहा होगा, दैट शुड बी समथिंग मीनिंगफुल। ठीक है, ये इट इज अंडरस्टूड कि आप हल्क प्राइस 2020 के लिए कर रहे हैं और आपकी टीम का नाम ये आपकी टीम के मेंबर जी हैं, लेकिन आई वुड लाइक कि जो फर्स्ट स्लाइड है ना आपकी, वो आपके आइडिया से रिलेटेड हो, उसमें कुछ ग्राफिक्स, कुछ इमेजेस नजर आ रहे हो, कि दैट बिकम्स मोर मीनिंगफुल, और नीचे आपकी टीम का नाम लिखा हो, फूड रीइंफोर्सर्स, टीम मेंबर की डिटेल अभी बेशक यहाँ पे ना करें या आगरे में डाल दें, ये पे रखना है। तो इस पे देखें, ये बिल्कुल सिर्फ टेक्सचुअल है, ठीक है, इसमें कोई ना ग्राफिक, कोई विजुअल चीज नहीं है। एक विजुअल या एक ग्राफिक होता है ना, वो समझ ले 1000 बातों के ऊपर जो है ना वो हावी होता है। किसी के पास ना ये जो पढ़ने में ना इंटरेस्ट नहीं होता, हम विजुअली चीजों को जल्दी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपका नाम है फूड रीइंफोर्सर्स, ये फूड रीइंफोर्सर्स क्या करेगा बताएं? वो पहली स्लाइड में हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि फूड रीइंफोर्सर्स का पर्पस क्या है। जी, फूड रीइंफोर्सर्स का काम क्या होगा, मुझे ये बताएं। सर वो मिशन एंड विजन की फॉर्म में हमने नेक्स्ट स्लाइड में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, टू रीइंफोर्स फूड सप्लाईज बाय एडिंग न्यूट्रिशन वैल्यू टू द डेली डाइट। अब वापस पहली स्लाइड के ऊपर आप आए। यहां पे रोके, साथ में ना ब्राउजर में क्या करें कि गूगल में सर्च करें फ्रूट्स, सर्च करें फ्रूट्स एंड न्यूट्रिशन। ओके सर। यस सर, आई सर्च। आगे आप लिखेंगे ना फ्रूट्स एंड न्यूट्रिशन, तो ये आपको सबसे पहला जो है ना, ये मैं चैट में भी लिख रहा हूँ, सबसे पहला जो आपको इमेज नजर आएगा ना, ठीक है,
वो आपको एक मल्टी कलर्ड किस्म के फ्रूट्स नजर आ रहे होंगे। यस सर, एग्जैक्टली। इसको उठाएं, कॉपी करें और अपनी स्लाइड के ऊपर डालें आप। सर जो अभी स्लाइड है ये अनएडिटेबल है। अनएडिटेबल है? क्यों अनएडिटेबल है? आप इसको एडिट मोड में करें सर। हाँ करें, इनेबल करें, इनेबल एडिटिंग, या ठीक है। जी वो आपका मेरे ख्याल में आपकी स्क्रीन शेयरिंग आपको दोबारा शायद शेयर करनी पड़ेगी। जी अनस, आई गेस के आपकी स्क्रीन जो है ना एटलीस्ट मुझे विजिबल नहीं है। अगर किसी और को तो है मुझे बता दीजिए। प्रॉब्ली आपको रीशेयर करनी पड़ेगी। यस सर, रीशेयर कर दीजिए जी प्लीज। Is it visible now? जी तो मिशन विजन पे नहीं ऐड करें, इसको उठाएं, इसको पहले के ऊपर फर्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके इसको कट करें यहाँ से। मतलब मैं भी ना आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, आप जो फाइनल जो फिनिशिंग है आप उसके बाद आप करते रहेंगे। मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट आपकी ओपनिंग स्लाइड है दैट शुड बी मीनिंगफुल एंड दैट शुड बी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, के जिस डोमेन में आप काम करना चाह रहे हैं वो देखने वाले को शुरू में बता दे कि एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, तो वो विजुअली इट शुड बी अपीलिंग। So currently sir हम इसमें infographics जरा से यूज कर रहे हैं, images यूज कर रहे हैं ताकि so it appears to be attractive. You got the point कि आप infographics का, images का अच्छा जो है ना वो यूज करें और सिमेट्रिक हो। ये नहीं कि एक तरफ आप एकदम नीला और पीला मिलाया हुआ है, कि जब यूजर एक आप थीम सेट कर ले उसके मुताबिक आप चलते रहें। फॉन्ट साइज और ये सारी चीजें ना ऑफ कोर्स देखने वाले को जरा अच्छी लगती हैं, तो विजुअल्स को कंज्यूम करना आसान होता है। तो आपने ये जो इमेज डाला है ना, इसको आपने, मेरी सजेशन होगी इसको पहली पे ले जाइएगा। दूसरा आपने किया होगा मिशन एंड विजन ऑफ फूड रीइंफोर्सेस। यार मिशन एंड विजन इज ओके, लेकिन मिशन एंड विजन जो है ना वो कहाँ पे आता है? कॉर्पोरेट के लिए आता है। जब बहुत बड़े बन जाते हैं तो उनको ये मुसीबत पड़ती है कि अपना विजन और मिशन लिखें। अभी जिस स्टेज पे आप है ना, मेरी हम्बल सजेशन ये हो जाएगी कि आप यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करें वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मैं जिक्र किया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट की ऐड करें। अच्छा, अब ये आपने लिखा हुआ है, हम इसी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने लिखा हुआ है टू रीइंफोर्स फूड सप्लाईज बाय एडिंग न्यूट्रिशन वैल्यूज टू डाइट, डेली डाइट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने इसी को कन्वर्ट करें प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर। इस स्लाइड की कॉपी इस स्लाइड की कॉपी बनाएं। यस सर। और उसका नाम रखें, हेडिंग की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। और ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, इसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि मैं जब आपसे आगे देखूं तो मुझे पता चले कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका मिशन विजन इज ओके, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि यार प्रॉब्लम क्या है, कितनी ग्रेविटी है, कितना बड़ा इशू है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखिए पाकिस्तान में कितने परसेंट जो है ना 25%, ये गलत फिगर मैं अपने वैसे बता रहा हूँ, आपने सही नहीं इसको मानना, कि पाकिस्तान में 25% जो है ना वो बच्चे जो अंडर 10 है ना, यार मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, वो उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है। ठीक है, साथ देखिए सोर्स पाकिस्तान जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ जो है ना वो कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर सकते हैं, WHO कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज है कि आप जब एक चीज कह रहे हैं कि मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूं तो किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखनी है कि देयर आर। सो बेसिकली
हमने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं लिखना, हमने बेसिकली पहले प्रॉब्लम मेंशन करनी है, पहले राइट? प्रॉब्लम बताएंगे फिर सोल्यूशन की बात करेंगे। सो जो बेसिकली सॉल्यूशन होगा वो अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट होएगा, राइट? जो प्रॉब्लम स्टेट, जो सोल्यूशन है वो आपकी प्रोडक्ट है, वो आपका आइडिया है। अंडरस्टूड सर। लेकिन मौसम साहब would you respect, हाँ, लेकिन उनका जो टाइटल है प्रेजेंटेशन का, वो दैट कुड बी देयर प्रोडक्ट टाइटल, सर्विस टाइटल। जी वो सही है, टाइटल इज ओके, टाइटल इज ओके। वो उन्होंने लिखा हुआ ना फूड रीइंफोर्सर्स, जो लिखा हुआ पहले के ऊपर, दैट इज परफेक्टली ऑलराइट सर, दैट्स ओके। अच्छा मैम, उसमें एक हम काम कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज के इसका ना फॉलो अप जो है, हम आज जो है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट टाइम जो शॉर्ट है, मेरी एक और अपॉइंटमेंट भी है 2 बजे के बाद जो है, व्हाट वी कैन डू इज, अगर आपकी टीम ये अवेलेबल है, हम ये कर सकते हैं, इसका फॉलो अप सेशन जो है ना इसी टाइम पे कल एक और कर लेते हैं, जिसमें आप में से कोई एक जो है ना वो कंप्लीट कर ले, तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। दैट विल बी ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। आपका तो हमें तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा ये, क्योंकि इसमें होगा कि जो बाकी की टीम्स है वो भी मेनवाइल इस पे काम कर लेंगी, और हम बिल्कुल उसमें फिर आप कीजिएगा किसी एक जो टीम है ना उनके साथ किसी एक का डेक जो है ना वो पूरा हो जाए, तो बाकियों के लिए वो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और उसमें भी हम ये मानते हैं कि हो सकता है सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो है ना वो क्या हो, सारे बिल्कुल फाइनल ना हो, लेकिन एक फॉर्मेट, एक टेम्पलेट हमारे पास जो है ना वो तैयार हो जाएगा, बाकियों के लिए वो रेफरेंस केस जो है ना वो बन जाएगा। दैट इज ग्रेट। अभी हम ये क्या करते हैं, इस सेशन को रैप अप करते हैं। आप सब लोग प्लीज जो है ना वो अपनी इसके ऊपर वर्किंग कर लें, और इसमें जितना आप इसको ना, मैं आप बताऊंगा 1 घंटा लगाएं, जो भी समझ आती है ना आपको अभी आप उसमें कर लें। इट विल नॉट बी द फाइनल वर्जन, बट ऑफ कोर्स इट विल बी समथिंग कि जिस तरह से आप जो है ना वो उसको फाउंडेशन को लेके आगे चल सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट जो जिन साहब ने मुझसे आज राब्ता किया था वो कल प्लीज इसी पे सेशन होस्ट कर लें, 1 बजे कर लें, तो हम इसका फॉलो अप जो है वो कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। सर जी प्लीज। जी सर, जस्ट वन क्वेश्चन सर। सर ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये 100% एक्यूरेट होने चाहिए यार, या फिर ये प्रेडिक्टेबल? नहीं, प्रेडिक्टेबल नहीं, एक्यूरेट होनी चाहिए, सारा सोर्स भी बताएंगे आप इसका। ठीक है सर। तो सोर्सेज हैं वो मोस्टली हम इंटरनेट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो हम जा नहीं सकते, इंटरनेट से सब कुछ आपको मिलेगा ना। ये जो बेसिक जो रिसर्च, ये रिसर्च का हिस्सा होता है ना, जो भी आप रिसर्च के लिए कोड करते हैं, आप रेफरेंस लाजमी कोड करते हैं। इस तरह से तो कोई आपके रेफरेंस को नहीं मानता ना। आप रेफरेंस जो है ना छोटा करके कर लें, उसकी डिटेल स्लाइड के एंड के ऊपर दे दी, कोई मसला नहीं है। पूछे तो बता दें कि ये कहाँ से लिया आपने, आपके एंड स्लाइड के ऊपर आ जाए जी ये मेरे रेफरेंस का, ये मैंने जो फिगर कोड किया ये फलां रेफरेंस से आई हुई है। अंडरस्टूड सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट जी, विश यू ऑल द बेस्ट जी। आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब लोगों ने हिम्मत की है और मुकाबले में उतरे हैं। पाकिस्तान को आप जैसे चमकते हुए सितारों की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अगेन। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर, थैंक यू सर। No, I need to say a few things. बच्चों जो जहाँ पे सब बैठे आज आपने ये जो भी एजेंडा पॉइंट था, जो भी स्लाइड्स का तरतीब एंड एवरीथिंग वो आपने लर्न किया है, लेकिन अब इंडिविजुअली आपने किस तरह से इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस के अंदर अपनी पिच को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके लिए आई एम अवेलेबल, कोई 1 by 1 अगर कोई भी करना चाहता है, किसी को अपने सेगमेंटेशन पे हेल्प लेना चाहता है, गाइडेंस लेना चाहता है कि हाउ वुड यू सेगमेंटाइज योर मार्केट, कोई बिजनेस मॉडल के ऊपर हेल्प लेना चाहता है, ठीक है, कि आपने कैसे डेवलप करना है, कल तक आपने कैसे प्रिपेयर करना है इन चीजों को,
तो आई विल बी अवेलेबल, ग्रुप में भी मैं मौजूद हूँ, तो सब आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू ग्रुप, और हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल एम्बैरेस ना। मैम आपका माइक ऑफ हो गया। हाँ, तो बाकी आई होप कि ऑल द ग्रुप्स वर देयर, जो कि जिनको हमने फाइनल के लिए किया था। हसन, इब्तिसाम, सारे ग्रुप मौजूद थे आज, ऑल 5 ऑफ देम? यस मैम, 5 टीम्स थी। अच्छा, चलें ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपने हमें यूनिवर्सिटी के लिए, जाहिर है, you have to earn respect and prestige, and you are source of prestige and respect for a university. आप किसी तरह से बाकी टीम्स से कमतर ना हो, क्योंकि लोग कहेंगे अच्छा फिर ए यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो है ना, उन्होंने इतनी हार्ड वर्क नहीं की। टैलेंट तो ज़ाहिर है गॉड गिफ्टेड होता है, तो हर एक के पास है, लेकिन ऑल दैट मैटर्स द हार्ड वर्क, है ना, तो एंड कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क। तो इस पे हम मजीद काम करेंगे, और भी जो भी आइडियाज होंगे, तो इंशाल्लाह ताला ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड, और कल इनके मौजूद साहब के सेशन से पहले मैं चाहूंगी कि मैं बारी बारी सबकी प्रेजेंटेशंस मैं देख लूं, और इसमें किसी को हेल्प की जरूरत है तो आई एम देयर अगेन, आई एम ऑफरिंग दिस, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। यार मुझे अभी भी समझ नहीं लग रही, इस कंपटीशन के बाद हम दोबारा इसको अप्लाई भी करेंगे ना? इस कंपटीशन की फाइनल रेंज होगी, वो आगे आप रीजनल लेवल पे जाएंगे, इसके एक्सेलरेटर पे जाएंगे। वैसे हर्ड प्राइस में आप इसको वहां जाके बेसिकली इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सेलरेटर स्टेज पे या फाइनल में जाके। बट इसके साथ साथ डिफरेंट स्टेजेस आती हैं जहां आपके इन्वेस्टर्स वगैरह बैठे होते हैं, मतलब कुछ जजेस ही आपके इन्वेस्टर्स वगैरह भी होते हैं। किसी भी स्टेज पे आपका आइडिया वो लेके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बट इस कंपटीशन से ये होता है कि आपको डिफरेंट आपका आइडिया और क्लियर होता जाता है। तो आपका आइडिया किसी भी स्टेज पे, मतलब अगर आपका आइडिया बहुत ज्यादा इनफ अच्छा हो गया तो स्टार्टअप क्लब भी आपकी हेल्प कर सकता है कि आप अपना आइडिया एग्जीक्यूट करें, हम आपके लिए इन्वेस्टर वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम इसी आइडिया को बेहतर करके और काफी जगह भी इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एग्जीक्यूट हो सकता है। ये आप जो अपना माइंड रखें वो इसको एग्जीक्यूट वाला ही माइंड रखें। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। और इसके अलावा देखिए, इट्स ऑल द मैटर ऑफ पोटेंशियल। जिस आइडिया में बहुत पोटेंशियल होगा, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको डेवलप किया होगा, तो उस आइडिया को हम सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेगी, हम आपको इंक्यूबेट करेंगे, हम आपको फर्दर कनेक्ट करेंगे विद मार्केट अपॉर्चुनिटीज, विद इन्वेस्टर्स एंड ऑल। लेकिन इट रियली मैटर्स, ऑल मैटर्स इज कि वो आइडिया में वाकई इतनी जान हो, इतनी वर्थ हो, इतना पोटेंशियल, उसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। डोंट माइंड, आई एम सराउंडेड बाय किड्स, so I cannot make myself audible anymore, लेकिन जो जानदार आइडियाज होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए हम आप फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ अपने आप को इस हल प्राइस के फाइनल कंटेस्ट तक ना रखिए, अपना विजन, ठीक है, लॉन्ग टर्म रखिए, एंड थिंक बिग, राइट? ओके, श्योर मैम। ओके, थैंक यू। Yeah, I'm working from home this week, the entire week. Anyways, चलें, thank you. Okay. जो आपकी पर्सनल कमिटमेंट है, पर्सनल डिसीजन है आपका, कि आपने इसको लेकर जाना है, इसको आपने कंपनी में, अपने फर्स्ट स्टार्टअप में कन्वर्ट करना है, फिर कंपनी में कन्वर्ट करना है, आपने इसको लॉन्च करना है मार्केट में एक्चुअली। तो ये आपकी पर्सनल कमिटमेंट होगी, और कहते हैं व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, ठीक है ना। जब आप खुद करना चाहेंगे, इसको आगे लेके जाना चाहेंगे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी। इंशाल्लाह वी आर देयर टू सपोर्ट यू, टू इंशाल्लाह। ओके मैम, थैंक यू।